Welcome back, class 12. This video is part 3 of the series of problem solving based on magnetic effects of current. Okay, so in the last two videos, we have solved the question related to Biot-Savart law and Ampere-Circuited law. Now we are going to jump on to the force, Lorentz force kind of questions. So in this, we get the questions related to vectors. So first of all, you need to see, you need to watch the video that I have made on vectors that is on my channel, on this channel only. You can find the playlist of class 11th and in that you can get dot product, vectors, cross product, these kind of topics you can get here. You can watch those videos. After that you can watch this, or if you know about vectors then it's very good. You can continue this. Okay, so in this, the question is saying that a proton enters a magnetic field of flux density. Okay, first of all, I would like to say that the flux density is also known as basically magnetic field. Okay, so there's not to worry in it. The simple magnetic field, you can also say it as magnetic field of magnetic field of flux density means magnetic field के magnitude को you can say as flux density. So that's no problem. Okay, it is already written as magnetic field only. It is magnetic 2.5 Tesla is magnetic field only. जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो. Okay, with the velocity of a proton is entering in a magnetic field of 2.5 Tesla with the velocity 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. So it's a very high velocity. First of all, at an angle of 30 degrees. Angle is 30 degrees with the field. What field? Obviously magnetic field. है ना? Find the force on the proton. As you already know that what is the formula of the force? That is QV cross V or QVB sin theta. Right? So here it is written as QV cross V. So we can, since angle is given, we can use the formula QVB sin theta. And in case of sine, see the angle is between V, the expression is V cross V. Okay, the angle is between the velocity and the magnetic field. And in the question it is also clearly mentioned that the angle is between velocity vector and the magnetic field vector. Right, so that is 30 degree. So you can simply put the formula that is QVB sin theta. Okay, so what is the formula? First of all, for solving any numerical in physics and chemistry or in any subject, you need to write what are the values that are given you in the questions. Okay, so here we have velocity is given, we have proton means charge का कहते हैं ना magnitude. We can also interpret कितना होता है magnitude, तो सिंपल होता है ना, सेम होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है. मास डिफरेंट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, बट चार्ज जो होता है उनमें तो सेम ही होता है मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो. राइट, सो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb will be the magnitude of the charge, that is proton. Obviously it will be positive only because it is a proton, it is a positive charge particle. And it is we have given in the question, we have that magnetic field, magnitude of magnetic field is given and the velocity is given. So everything is given. So we can use simply the expression that is F is equal to QVB sine and angle what is given 30. So I am directly writing is at 30. Okay. Let's keep the values like Q की value हम क्या रखेंगे 1.6. Okay, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. Now that we have multiply by velocity, we will keep the velocity as 1.5 into 10 to the power 7 meter per second multiply by what we have magnetic field. Now we can write it as 2.5 Tesla. Okay, multiply by, you also have to write the units. और यूनिट को आप नहीं भी रखते हो तो आंसर जो आपका आएगा सारा का सारा जो है आपने MKS में सारी वैल्यूज हैं, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द न्यूटन. ओके, तो न्यूटन में आंसर आएगा क्योंकि फोर्स है. फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन. ओके, सो द आंसर विल बी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारे पास कुछ बच रहा है क्या, साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, 0 फिर 1/2
1/2 होती है ना। ओके, तो 1/2 आप रख दो, साइन 30 इज 1/2, सो 1/2 मैंने यहाँ पे रख दिया साइन 30 की वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या आ रहा है यहाँ पे, तो आपका फोर्स आ रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 10⁻⁻12 न्यूटन्स। तो ये बहुत ही छोटा फोर्स है, बहुत ही कम, ये एक मैग्नीट्यूड का फोर्स है, 3 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि बहुत ही छोटा एक फोर्स लग रहा है, किस पे, एक प्रोटॉन पे लग रहा है, ठीक। और ये फोर्स कौन लगाता है, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाती है, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन पे जाते हैं। ओके, तो आज की जो मैंने वीडियो मैंने आप लोग को भेजी थी वो 2 आवर्स की वीडियो थी, तो आप लोग अगर इसको सारा देख लोगे ना, और सिर्फ देखोगे ही नहीं, साथ में और प्रैक्टिस भी करोगे और भी क्वेश्चंस, तो आपका जो वो वाले टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो लगभग लगभग सारे हो जाएंगे कवर्ड, ठीक है। तो इसको भी आप साथ के साथ ही करते चलिएगा, ठीक है, पीछे मत छूटिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अल्फा पार्टिकल की बात कर दिया गया है। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, विद स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकंड। पहली बात तो इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एग्जिस्ट्स इन अ डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। फोर्स निकालना है, क्या लगाएंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक, यहाँ पे। और प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स यानी कि क्या एंगल बन रहा है इसका, सिंपल सी बात है, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब कि एंगल इसका 90 डिग्री बन रहा है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब कि जो आपका साइन 90 दैट विल बी 1। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी, राइट। तो हमें सारी वैल्यूज तो पता ही है। चार्ज पहले बात कर लेते हैं, चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन एल्फा एल्फा पार्टिकल कितना होता है, वो होता है प्लस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक अल्फा पार्टिकल पे। तो आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज मालूम चल गया, इतना कूलम, ओके, आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता चल गया। यू नो द वेलोसिटी, है ना, यू नो द magnitude of the magnetic field, you simply have to put all the values in the expression of F is equal to QV. You have to calculate the force. F is equal to QV. Okay. So sin, since sin 90 भी होना चाहिए, बट sin 90 तो 1 हो जाता है, ओके। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसे कैलकुलेट करने के बाद, सारा कुछ जब हम वैल्यूज को रख के और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 9.6 इंटू -12 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ से एक आइडिया मिल रहा होगा कि जो आंसर आ रहा है ना हमारा फोर्स का, जो भी हमारे फोर्स का आंसर आ रहा है वो इस ऑर्डर में आ रहा है, 10⁻⁻12 इस टाइप में आ रहा है। तो याद रखना, जब भी आंसर आपका फोर्स का जो भी आएगा लगभग लगभग इतने ही ऑर्डर का होगा, ठीक है। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड छोटे छोटे टेस्ला की ही लग रही है, ओके। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में। देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर वेक्टर आता होगा अच्छे से तो ये आराम से हो जाएगा, वेक्टर नहीं आता होगा तो वेक्टर वाली वीडियो देख के तब इसको करना। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स हम म्यू से लिखते हैं माइक्रो को, ठीक है, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 is moving with a speed of 2 into 10 to the power -6 मीटर पर सेकंड along the positive x direction, पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ है ये, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी वेक्टर, जो कि वेक्टर लगा नहीं, आप लोग वेक्टर लगा लेना बी के ऊपर, इज इक्वल टू 0.2 जे कैप, जिसको जे कैप का मतलब नहीं पता, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, जो कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, ओके। तो जे कैप यानी कि वाई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है। अगर के कैप लिखा है यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है, अगर माइनस के कैप होता तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन की बात करता है, ओके।
सो ये यूनिट वेक्टर होते हैं आई, जे और के, जो कि एक्स, वाई और जेड की डायरेक्शन बताते हैं एक्सेस की। ओके, सो ये टेस्ला इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लगाओगे ये सिंपल नहीं होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा दिस विल बी एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी आएगा, क्रॉस बी। क्रॉस यहाँ पे सिंबल मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो आई कुड यूज दिस। क्रॉस हमारा इस तरीके से आएगा वी क्रॉस बी। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा आपकी, वी क्रॉस बी, क्योंकि दोनों वेक्टर है तो उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यों भी साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड का हमें आइडिया नहीं हो। तो चलो ये चीज़ तो हमें पता चल गई। तो हमें क्या पता है, हमें चार्ज के बारे में पता है, वी हैव चार्ज की वैल्यू हमें पता है जो कि है हमारी 1.5 माइक्रो कूलम, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है। और क्या दिया है हमको, हमें मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है अंदाज़ा, और हमें वेलोसिटी वेक्टर का अंदाज़ा। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखा हुआ है, 2 × 10⁻⁻⁰ और पॉजिटिव जेड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो दिस वेलोसिटी वेक्टर वी, दिस विल वेक्टर वी है, ये याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁻, क्या लिखा है 6 से 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। इसमें आगे आएगा आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कौन शो करता है, आई कैप, ठीक है। आई कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को शो करता है। ओके, तो ये हमने वेलोसिटी वेक्टर लिखा, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ, दोबारा नहीं लिखूंगा। ओके, तो ये चीज़ हमें पता है, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका जो होता है वो डिटर्मिनेंट मेथड होता है, ठीक है। जो अभी 12th में मैथ्स वाले आप लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे, उसमें आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी वेक्टर भी पढ़ोगे क्रॉस, तो ये सारी चीज़ें मैथ्स वाले तो आराम से कर लेंगे। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए आप लोग एक बार वीडियो देख लो, मैंने जो बनाई है वेक्टर पे, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल पे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी। वेक्टर का मैंने 2 वीडियो बनाए, एक डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा रेजोल्यूशन एंड ऑल सब पे, और एक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट पे, बेसिकली स्पेसिफिकली क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही है। ओके, सो उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन हमारा जो फोर्स निकालना है हमको, तो फोर्स के लिए इज इक्वल टू, हम क्या लगाएं, वैल्यू रखते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या होगा ना, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, किसका किससे क्रॉस करना है, वी का क्रॉस बी से करना है, ठीक। तो 2 पहले लिखेंगे, 2 इंटू, मतलब वी का मैग्नीट्यूड जो भी लिखा हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁶ आई कैप लिखते हैं। आई कैप को मैं सी लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है सी, ठीक। सिंस आई कैन नॉट यूज कैप तो मैं इसको सी लिख रहा हूँ, या फिर कैप ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। उसको हमको क्रॉस करना है। क्रॉस में यहाँ पे रुको, मैं क्रॉस बना ही देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, कभी भूलो ना, ठीक है। क्रॉस, और हमारा जो भी होगा इतना क्रॉस यहाँ पे, क्रॉस हमारा जो, अब बी वेक्टर को लिख लेते हैं। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, बी वेक्टर की जो है उसको ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 0.2 जे कैप, 0.2 जे कैप प्लस आई थिंक 0.4 है, यस, के कैप, ब्रैकेट स्मॉल वाला क्लोज्ड और बड़ा वाला भी क्लोज। तो अब देखो तुम लोगों को ये चीज़ दिख रहा है, ठीक। क्रॉस जब मैं लिखूंगा तो नहीं दिखेगा हो सकता है, बट अब मैं ट्राई करूंगा कि इसको ऐसे है। अब एक बात ये याद रखना, आई क्रॉस जे अगर हम करते हैं तो आई क्रॉस, जैसे सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, सिंपल पहले वैसे मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। तो कौन सी चीज़ें ज़ीरो होंगी वो अभी हम बताते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो, अगर हम आई कैप को क्रॉस करते हैं जे कैप से तो हमारा आंसर के कैप आता है, ठीक।
जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको तो हम लिखेंगे, साथ में जो डायरेक्शन होगा वो के कैप की आएगी। अगर हम करते हैं जे कैप को के कैप से क्रॉस, तो हमारी डायरेक्शन जो आती है वो आई क्रॉस आती है, आई कैप आती है। ठीक है, साइकिल एक चलती रहती है, तो मैंने इस पूरे चीज़ पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ अब, ये हमारा हो जाएगा एफ, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड तो चार्ज करेगा, इसको मैं क्यू ही लिखता हूँ, बार लिखने की जरूरत नहीं है। अंदर को सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6 इंटू, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो वो 0.2 जे कैप से मल्टीप्लाई होगा पहले। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड्स को अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 10⁻6 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 0.2। ओके, 0.2। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, आई कैप क्रॉस जे कैप। अब आई कैप क्रॉस जे कैप जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा के कैप, यहाँ पे लिख देंगे हम के कैप। समझ आया कैसे हुआ? ओके, इसी तरह प्लस आगे अगेन 2 इंटू, जैसे सिंपली ब्रैकेट खोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही खोलेंगे, 2 इंटू 10⁻6, ये तो यहाँ से हो गया, बचा क्या, इंटू 0.4 होगा यहाँ पे, तो इंटू 0.4 लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब बचा हमारे पास आई क्रॉस के कैप। अब याद रखना, जैसे आई क्रॉस जे के कैप होता है ना, वैसे आई क्रॉस के अगर करेंगे तो माइनस जे कैप आंसर आता है। ठीक है, तीसरा वाला आता है बट माइनस में। देखो आई जे के की साइकिल बनती है, ठीक, आई जे के की साइकिल बनी होती है। तो एक बार वही वेक्टर वाला वीडियो जरूर देख लेना उसके बाद। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका आंसर जो होगा आई क्रॉस के कैप है ना, तो ये हो जाएगा माइनस जे, तो हम ब्रैकेट में या डायरेक्ट ऐसे माइनस जे कैप लिख देते हैं, माइनस जे कैप इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं छोटे वाले में, तो सही रहेगा। माइनस जे कैप, माइनस जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? जैसे आई कैप पॉजिटिव एक्स को करता है, तो माइनस आई कैप किसको करेगा, नेगेटिव एक्स को। ये सारे यूनिट वेक्टर्स है जो कि डायरेक्शन बताते हैं। ओके, तो इसके आगे हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारा एफ जो बन जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू का मैग्नीट्यूड हम रख देते हैं। ठीक, तो क्यू का मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट रख देते हैं और उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर से। ठीक है, अब क्यू तो वेक्टर है नहीं, वो तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 0.2 और 2 को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इससे क्या होगा, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इजी हो जाएगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.6 के कैप। ठीक है, के कैप वाला सारा सोल्यूशन जो हमने मतलब सॉल्व करके निकाला, 0.6 के कैप, फिर माइनस लग रहा है, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस जे कैप के पास से आया, माइनस जे कैप है ना, तो वहाँ से माइनस आ गया बाहर, माइनस और 1.2 बचा क्या, जे कैप। ठीक है, कैप जिसको लगाना नहीं आता तो हल्का सा एक, जैसे पावर में लगाना ना ये वाला साइन, तो पावर के लिए मैं साइन लगाता हूँ, वही जे के ऊपर लग जाता है, तो उसको हम जे कैप बोलते हैं। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। इतना न्यूटन, हमारा जो आंसर है वो इतना न्यूटन है, उसको ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, तो ये है आपका आंसर जो कि आया है। ये कब सॉल्व कर पाओगे, जब वेक्टर्स की नॉलेज होगी तो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन। अब ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी इस तरीके का यूनिट अगर है ना, वो हमेशा क्या लिखा है, एनर्जी लिखा है। ठीक है, आप लोग ने ऑलरेडी क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर में ये सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं केमिस्ट्री में, राइट। सो ये जो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बेसिकली क्या दिया हुआ है, एलजी दिया हुआ है। और कौन सी एनर्जी होती है मूविंग चार्ज में, काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। सो अब 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि
आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रिजेक्ट्री है यानी कि वेलोसिटी जिधर लग रही है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? एंगल तो 90 डिग्री हो गया, राइट? वर्टिकली दे रहा है और हॉरिजॉन्टली लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो वी हमारा जो वी के जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें एक बात हमने निकाली, ठीक। अगेन 1.5 टेस्ला एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नीट्यूड, वो तो हम निकाल लेंगे, एंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ से निकलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ओके, या फिर राइट हैंड पाम रूल से, दोनों रूल आपको बताया गया, ठीक है। ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्रोटॉन, टेक द मास ऑफ द प्रोटॉन। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे मास क्यों दिया हुआ है बेटा? देखो मास इसलिए दिया है ना यहाँ पे, ताकि आप काइनेटिक एनर्जी को ना आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख के वहां से क्या चाहिए, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? वेलोसिटी मिसिंग है ना, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कहाँ से पता चल जाएगी हमको? इसकी मदद से। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद आया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हमने जब वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था, वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा था चैप्टर सेकंड में, तो हमने ये सब चीज़ें देखी थी, है ना, केमिस्ट्री में। सो क्या है ये मास दिया हुआ है, किसका? प्रोटॉन का मास दिया हुआ है। और आपका प्रोटॉन का मास क्यों दिया है? वहाँ से आप जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लगाओगे तो वहाँ से आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो आइए सोल्यूशन पे आते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी, पहले गिवन क्या क्या है ये लिख देते हैं। गिवन, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? गिवन लिखना चाहिए। क्या दिया है हमें? गिवन हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करना होगा बेटा, पहली बात तो ये समझ लो कि जब हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होता है, जितना भी हो, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, उत्ते से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो हमारा पूरा वैल्यू होता है वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मेगा दिया हुआ है, तो मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो 10 तो ये हो जाएगा टोटल में, दिस विल बिकम, जूल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, मैं यहीं से डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूँ, इनटू, पहले तो 10⁶ लिखेंगे मेगा के लिए, 10⁶ लिख दिया मेगा के लिए, मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज करने के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1.6, बोलते चलो साथ साथ, इंटू 10⁻⁻19। ओवरऑल कितना आ गया ये? 5 इंटू, नहीं 5 नहीं आएगा, 5 इंटू 1.6, ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल में। इसको ऐसे ही लिखे रहते हैं, 5 इंटू 1.6, इसको ऐसे ही लिखे रहते हैं ताकि बाद में कुछ चीज़ अगर कैंसिल हो रही होगी तो इजीली कैंसिल हो जाए, ठीक है। 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, में क्या आएगा ये बताओ? 6 पावर घट गई तो बचा 10⁻⁻13 ना, 19 में से 6 घट गया तो 10⁻⁻13। अब ये जो आ गया है ये है जूल, इतनी जूल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब यहाँ से हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे? आपको पता है ना, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी आई हुई है ऊपर? 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स आई है। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, मास दिया हुआ है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी जो आपके आ जाएगी यहाँ पे, वेलोसिटी जो आएगी ये आपकी जो आ रही है वेलोसिटी, वो आ रही है 3.16 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी आ रही है। अब हमें वेलोसिटी पता चल गई, और हमें क्या चीज़ चाहिए था भैया? और हमें कुछ नहीं चाहिए था। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं फोर्स का। F इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमारा ये बदल जाएगा, थीटा किस में बदल जाएगा? थीटा बदल जाएगा हमारा 90 में, तो हम डायरेक्ट 90 लिख देते हैं। और ये जो हमारा साइन 90 है ये किस में बदल जाएगा? ये 1 में बदल जाएगा, तो उसको हम गायब भी कर दे रहे हैं, ठीक। तो क्यू वी बी की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं वैल्यू, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻, कितना? -19 कूलम,
ओके अगेन v पे आते हैं, वेलोसिटी हमारी क्या निकाली है 3.16 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, है ना। यूनिट नहीं लिखते हैं बाद में, फोर्स तो ऐसे भी न्यूटन में ही आएगा, मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या बचा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला, उसको तो हम इसी में रखेंगे। सारा कुछ कैलकुलेट करके हमारा क्या आ रहा है, लास्ट का जो हमारा आ रहा है दैट इज 7.58 इंटू 10⁻, किसके ऑर्डर में आता है हमेशा, हम फोर्स को कितने ऑर्डर में लिखते हैं, 10⁻⁻12 के ऑर्डर में लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, अभी आप भी बोर्ड में भी जब क्वेश्चन करना ना, मान लो क्वेश्चन इस तरीके आता है और फोर्स आपसे पूछा जाए, तो आप हमेशा फोर्स को कितने ऑर्डर में लिखोगे, -10⁻⁻12 में। उसके अकॉर्डिंग जो उसका कोफिशिएंट जो आगे लगा हुआ है वो चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे 10⁻11 आ रहा है, 10⁻10 आ रहा है किसी का, और कांस्टेंट को, तो उसको बदल बदल के आप 10⁻12 में ही चेंज कर देना। ऑर्डर फोर्स का यही होना चाहिए, राइट। इतना कितना आगे लगा दे हम, इतना न्यूटन। ठीक है, तो अब हम बात, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आया भाई। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, FBI, मैंने याद करवाया था ना, FBI थंब टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फर्स्ट फिंगर को रखते हैं, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, राइट। FBI। ओके, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, प्रोटॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती थी उसके अपोजिट में चलता था करंट, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन चलता है। तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं अपनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारी डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोटॉन पे लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ वो जा रही है। ठीक है, तो बना लो आप साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बना ही सकते हो, आप बना लो। साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली जा रही है, और आपका जो वेलोसिटी है, मतलब कि जो आप मूव कर रहा है प्रोटॉन, वो किधर जा रहा है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो यानी कि आप अपने किसके डायरेक्शन में, आप करंट की डायरेक्शन को वर्टिकली डाउनवर्ड मानोगे, तो अपने आप जो मिडिल फिंगर है उसको डाउनवर्ड कर दो और मैग्नेटिक फील्ड को साउथ टू नॉर्थ कर दो, तो आपको क्या डायरेक्शन आ जाएगा, वो एक तरीके से हम देखेंगे तो ईस्ट वर्ड्स की तरफ जाएगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ। ठीक, तो ईस्ट की तरफ जाएगा हमारा फोर्स जो कि प्रोटॉन पे लग रहा है। ओके, तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, ईस्ट। तो आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो दोनों लेके आना, क्योंकि बोर्ड में आपसे जरूर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पूछता है। बच्चे क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल के बड़े खुश हो जाते हैं, आंसर आ गया हमारा, और आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनको डायरेक्शन भी लिखना था। तो आप लोग जल्दबाजी में ऐसी गलती मत करना, और ऐसे क्वेश्चन में कभी करना तो हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन टिपिकल होंगे, हम टिपिकल वाले भी करेंगे। ओके ओके, तो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कॉपर हैज 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको 8 × 10⁻28 है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि जो हमारा स्मॉल n होता था, राइट। ओके, सो मूविंग फर्दर, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, कैरिंग अ करंट एंड लाइंग एट राइट एंगल, मतलब करंट कैरी कर रहा है और कैसे लाई कर रहा है, कैरिंग लाइंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पे, समझ में आ रहा है। तो देखो, और क्या कह रहा है ये, यानी कि ऑब्वियसली अब आप खुद सोचो, मतलब अगर वायर जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से ना, लाइंग एट राइट एंगल का मतलब यही हुआ, तो वायर से ही तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूव करना के अपोजिट करंट मूव करता है, यानी कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी चीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए इतना पढ़ने के बाद। इतना मैग्नीट्यूड दे दिया हमको मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, कौन एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ऑफ
8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। यहाँ से ये चीज़ हमें पता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड पता चल गई। निकालना क्या है, हमको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर। ठीक है भाई, तो इस तरीके का कुछ एक आध क्वेश्चन हमने लाइव क्लास जब हमारी चलती थी तो हमने कुछ किया था, इस चैप्टर में नहीं, बट जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरीके से निकाली थी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमको अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी होगी तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे? नंबर बचे, जो कि क्या बताएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो आधे बच्चे यही इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया है या नंबर दिया है। उसमें आपको सिंपल, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया दिया होगा तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ दिया होगा, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ आ जाएगी। समझ में आ रही है इतनी बात? तो कभी भी इस तरीके से हमारे में कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ कंफ्यूजन बहुत ही बड़ी होती है, ये होगी क्लियर। उसके बाद हमारे जो स्मॉल एन यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम सिंबल्स में लिखेंगे। स्मॉल एन हमारा दिया है 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। ये है हमारा, इसको पर क्यूबिक मीटर को हम मीटर की पावर -3 लिख देते हैं। हाँ, मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो लेंथ हमारी क्या दी है? लेंथ जो हमारी दी है वो दी है, कितनी दी है? 1 मीटर, लिख देते हैं 1 मीटर। एरिया क्या दिया हुआ है हमारा? एरिया हमें दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें एरिया दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो, अगर हम एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर याद करो। ठीक, एरिया और लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू लेंथ। क्या आएगा हमारा? सिंपल जो है यही आएगा, मीटर है इसमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये? 8 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक, अब हम अगर स्मॉल एन को मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल वी से तो हमारा किस में बदल जाएगा? कैपिटल एन में। यानी कि ये जो है हमारा, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये आपका क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, है ना। अब उसके बाद आप यहाँ से उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लग रहा है वो निकाल लोगे। ठीक, अब देखो, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें पता चल गया ना कि वॉल्यूम जो भी है, मतलब निकाल लेते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो जो हमारा टोटल चार्ज होगा, यानी कि अगर हम चार्ज की बात करें, Q इज इक्वल टू हमारा होता था एन ई। ठीक है, Q इज इक्वल टू हमारा एन ई होता था, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। ओके, तो ये जो Q इज इक्वल टू एन ई है, ये कैसे? अगर हम ये जो स्मॉल एन है, मतलब नंबर ऑफ, ऑब्वियसली ये कैपिटल एन होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू उसका मैग्नीट्यूड ई, है ना। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया है। तो हम इसको जब रखेंगे अपने एक्सप्रेशन में तो क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम एज, इसको पूरा पूरा रखते हैं हम, 8 इंटू 10⁻28 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो कि हमारा क्या आया है? 8 इंटू 10⁻6, राइट, मीटर क्यूब, है ना, 6 मीटर क्यूब इंटू ई का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ गए? ये जो आया हमारा, ये है टोटल चार्ज। ये जो आएगा हमारा, दैट विल बी टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज का हमें आइडिया मिल गया।
अब हमें जब टोटल चार्ज मिल जाएगा तो वहीं से तुम निकाल सकते हैं ना, फोर्स से रिलेट करके हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, राइट। और जो वेलोसिटी आएगी वही क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती थी कि नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही होगी हमारी। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। क्या हमें नहीं दिया है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारा एक्सप्रेशन फोर्स का क्या होता था, क्यू वी बी साइन थीटा, वहाँ पे वी हमें नहीं पता है बट हमें यहाँ पे फोर्स पता है, तो हम एक्सप्रेशन को इंटरचेंज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी एक्चुअली में वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से हम उसको जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को। ओके, सो वहाँ से हमारी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो हमने क्या निकाल लिया, टोटल चार्ज, जो कि किसके बराबर आ रहा है, टोटल चार्ज जो है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है हमारा, वो हमारे किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 102.4 इंटू 10⁻³ कूलम, 10⁻³ कूलम, है ना। इतना बहुत ज़्यादा चार्ज है तो, ठीक है, इतना कूलम हमारा चार्ज आ गया। अब अगर हम v को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान रहे हैं, ठीक है, अगर v आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो आपको जो एक्सप्रेशन है f इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब साइन थीटा मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुमको पता ही है ना वो परपेंडिकुलर साइन 91 हो गया तो उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से आपको v नहीं पता है ना, तो आप इसको एक्सप्रेशन को चेंज कर लो, ऊपर ही चेंज कर लेते हैं, एक्सप्रेशन को आप जो चेंज कर लोगे वो v के बराबर में लिख लो, एक्सप्रेशन को v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका f अपॉन क्यू इंटू बी, राइट, क्यू बी, एफ अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा अभी हमें नहीं पता, तो उसको लिखते हैं, v इज इक्वल टू फोर्स, क्या दिया हुआ है फोर्स, फोर्स हमें दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, 8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, ओके, डिवाइडेड बाय क्यू क्या दिया है 102 प्लस 0.4 इंटू 10⁻³ कूलम, मल्टीप्लाई बाय क्या बचा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कि है 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला, 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, टेस्ला नहीं लिखते हैं भाई। तो वेलोसिटी जो हमारी आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, तो यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी निकल के आती है वो आ जाती है 1.56 इंटू 1.56 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। हालांकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज होती है, कम हो जाती है। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस, यानी कि हमारा जो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है, मोशन के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है। और जो नहीं आ रहा आप पूछिए ज़रूर, क्योंकि बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई तो बहुत से बच्चे तो कोई चैप्टर 1 अभी कंप्लीट किया है, तो कोई चैप्टर 2 पे हटका है, कोई चैप्टर 3 पे है, तो बेटा साथ के साथ चलते रहो, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी तुम लोग के लिए। इसीलिए मैं ये सब वीडियो डाल देता हूँ ताकि जिसका जब मन करे वो वीडियो देखे, बट क्लास के टाइम पे कुछ वीडियो ज़रूर देखिए, क्लास के टाइम पे ही देखिए वीडियो, तो जिससे कि आपका एक रूटीन प्रॉपर मेंटेन रहेगा। ओके, सो आई होप तुम लोग सारी वीडियो जो मैंने सीरीज़ बनाई है वो भी देख डालोगे और पिछला जो भी है उसको बुक से या फिर कैसे भी पढ़ लोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो मैं वापस से सारी क्लास तो नहीं ले सकता क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द कोर्स। ओके, सो आप लोग यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स और यू कैन आस्क फ्रॉम मी, एक कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आ रहा पूछो, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक पूछोगे तो वो पॉसिबल नहीं है समझाना, क्योंकि इस समय टाइम बहुत कम है और हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी है। सो ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो अब हम आते हैं मोशन के क्वेश्चन में, हम आ गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चेम्बर इज मेंटेन एट मतलब एक चेम्बर है उसको मेंटेन किया गया है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है कॉन्स्टेंटली 5 इंटू 10⁻³ इतने मैग्नीट्यूड की कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड ऑफ इतना एंटर्स द चेम्बर, एक इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से एंटर करता है चेम्बर में,
इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फील्ड, जब नॉर्मल टू द फील्ड में करता है। अब आप लोग जानते हो कि जब नॉर्मल टू द फील्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो कैसा पाथ अपना बनाता है, ठीक है। और अगर फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि नॉर्मल अगर एंटर करता है तो ऑब्वियसली क्या होगा आपको पता है, सर्कुलर पाथ बनाएगा ना वो। और कह रहा है कि रेडियस ऑफ द पाथ निकालो और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन और रेडियस ऑफ द पाथ का फॉर्मूला एक्सप्रेशन आप लोग को याद है क्या? आई नो कि नहीं याद होगा, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो जो रेडियस होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी अपॉन आपका q इंटू वी। तो q यहाँ पे तो आपका q इंटू वी मैं लिख रहा हूँ, q चार्ज है बियर। और टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन जो होता है वो आता है आपका 2 पाई m डिवाइडेड बाय q v। ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके सब पढ़ चुका है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये सब ऑलरेडी। बट आइडियली हम तो यही मान के चलते हैं कि तुम लोग ने पढ़ा है, बट एक्चुअली में आधे लोग नहीं पढ़े होते हो, प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। कोई बात नहीं। अब आप लोग बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ओके, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। और यहाँ पे सारे जो सिंबल हैं उसकी मीनिंग तो आप लोग को पता ही होगी, अगर वो भी नहीं पता यानी कि बहुत बुरा हाल है। ओके, तो हमें क्या सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, जो जो चीज़ हमें चाहिए क्या हमें पता है। अ चेम्बर इज मेंटेन, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है। हमें स्पीड चाहिए, हमें स्पीड पता है। हमें मास चाहिए, हमें मास पता है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, और तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए ना। हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमें वेलोसिटी पता है, हाँ पता है। हमें मास चाहिए, मास पता है। हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड पता है। तो हमें आर तो निकल आएगा, ठीक। आर हमारा निकल आएगा, सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। केजी में रखोगे, MKS में रखेंगे, यूनिट को याद रखो, ठीक है। केजी रखोगे तो वहाँ से रेडियस निकल आएगा। मैं मुझे कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी थोड़ा पेन वैन चलाओ, ठीक है, दिमाग तो बहुत चलाते हो, पेन भी चलाओ। तो ये आ जाएगा आपका, अगर हम इसको रखते हैं यहाँ पे तो लोग और रखते ही हैं, ठीक है। नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर ने सॉल्व नहीं कराया। 10⁻⁻31 kg इंटू रेडियस निकालना पहले हम, इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दी है भाई, 5 इंटू 10⁻⁷ 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड अपॉन एंटर्स डायरेक्ट द चेम्बर इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द, ये तो ठीक है। क्यू का चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई है क्या बचा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, ठीक है। यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा, जो कि हमारा रेडियस आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है 5.7 सेंटीमीटर। को मीटर में चेंज कर देंगे तो आएगा हमारा 0 पॉइंट, ये आएगा 0.05 0.057 मीटर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालो भाई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, अगेन क्या क्या चीज़ हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी के लिए। हमें क्यू चाहिए, हमें पता है। बी चाहिए, हमें पता है। क्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 1.6×10⁻⁻19 कूलम। क्यू इज अ चार्ज, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पे। बी का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता है 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 3.14 और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो सारी वैल्यूज को रखने के बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 1.4 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 8 पर सेकेंड, या फिर हर्ट्ज हम लिखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है तो हम हर्ट्ज लिखेंगे। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमेशा बेसिक होता है, फॉर्मूला पे बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन तो हम करेंगे वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो बी होल्ड, सारी नॉलेज को अपने ग्रैस्प करो दिमाग में। और ये
हाँ सेकंड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। हमें उस इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेडियस दे दिया है 20 सेंटीमीटर, जिसको कि हम मीटर में जरूर कन्वर्ट करेंगे। इन अ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है। और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड। इस पे बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के आएगी। देखो हमें क्या पता है, हमें रेडियस पता है, ठीक। अब देखो अब आप सिंपल सी बात है, हमें रेडियस पता है ना, वहां से हमको निकालना क्या है, हमको स्पीड निकालनी है। तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, पहले तो यही सोचना पड़ेगा हमें, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो उसको सोचने से पहले ये समझ जाओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, तभी ये सर्कुलर पाथ ले पा रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, मैं बार बार बता चुका हूँ कौन देता है, यही जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घूमने की ताकत देता है, ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। दोनों बराबर होंगे ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन पाथ सर्कुलर लेगा, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, हमें रेडियस पता है जिसको कि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो तो हमें रटा होता है, क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो हम आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। और मास भी हमें पता है 9.1 × 10⁻31 kg, ग्राम्स में नहीं रखेंगे, केजी में रखते हैं मास, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का, जो भी इलेक्ट्रॉन भी लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का हमारा जो एक्सप्रेशन है, और देखो एक चीज और यहाँ पे बताया गया आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मतलब जिस जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन घुसा और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तभी सर्कुलर पाथ लिया है, ठीक है। तो वहां से जो हमारा क्यू वी बी साइन थीटा हो, तो साइन थीटा तो 1 हो जाएगा साइन 90, ठीक। तो क्या बचेगा क्यू वी बी। तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, दिस मैग्नेटिक फोर्स लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फोर्स दिस विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और आपको याद होगा अगर मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारा होता है क्यू वी बी साइन थीटा 1 है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे एम क्या है, जो पार्टिकल उसका मास, वेलोसिटी यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। और आर क्या है आपका रेडियस है। तो इतने इन्फॉर्मेशन से हमें क्या चीज नहीं पता है यहाँ पे, खुद बताओ। अच्छा इसको जब हम थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे तो एम वी स्क्वायर, वी से भी कैंसिल कर दिया जाएगा, क्यू डी इज इक्वल टू हमारा एम वी अपॉन आर, ओके। ये इसके बराबर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे क्या नहीं पता, हमें ये सोचना। देखो हमें क्यू का आइडिया तो है, डी के बारे में भी क्वेश्चन में हमें गिवन है, मास भी हमें पता है, हमें वेलोसिटी नहीं पता, हमें वेलोसिटी निकालनी ना वो हमें नहीं पता, और हमें रेडियस का अंदाजा दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस को हमको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन को क्या चेंज कर देंगे, हम वेलोसिटी के टर्म्स में चेंज कर लेंगे, और वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं कैपिटल वी यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कैपिटल ही वी यूज करता हूँ, नहीं तो तुम लोग सोचोगे स्मॉल वी क्या है। तो दिस कैपिटल वी विल बिकम एज, ये आर हमारा चला जाएगा क्यू बी के पास और एम नीचे आ जाएगा, तो क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन ये आ जाएगा आपका एम, ये आपके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हम रखते हैं सारी वैल्यूज को और निकालते हैं क्या आ रहा है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू q, यानी कि 1.6 इंटू, बार बार लिखते लिखते मुझे भी मतलब आप लोग को भी रट गया होगा, 10⁻⁻⁻ -19 कूलम। पता है क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ना कुछ एक ट्रिक पता चल जाती है कि जो कि सारे क्वेश्चन में हम एक न्यूमेरिक वैल्यू बना लेते हैं जो कि हर क्वेश्चन में कॉमन आती है, और फिर उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमारा आंसर आता जाता है जल्दी जल्दी से, कैलकुलेशन मतलब जल्दी हो जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के आता है, और जो प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो उनको इस चीज़ का आइडिया हो भी गया होगा कि क्या वैल्यू को हमको काटना है, क्या वैल्यू को हमको रखे रहना है, जो कि बाद में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है बेटा, तो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे
तो प्रॉब्लम तुम्हारी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्यू की वैल्यू हमने रख दी है, बचा क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू रखनी है। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। तो हम रख देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। ओके, और हमारे पास क्या रखनी है आगे वैल्यू, और हमें क्या रखना है, और हमें रखना है रेडियस की वैल्यू जो कि है 20 सेंटीमीटर, बट हम इसको 20 सेंटीमीटर रख के क्या रखेंगे, हम इसको रखेंगे मीटर में, तो 0.2 मीटर। ओके, सो उसके बाद हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में हमारा बचा 9.1 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, केजी यूनिट नहीं लिखते हैं ऑब्वियसली। ठीक, तो हमारी वेलोसिटी जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। कितनी आ रही है हमारी, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 7 इंटू 10 टू द पावर 7, अप्रॉक्सीमेटली 7 इंटू 10 टू द पावर 7 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हमारी वेलोसिटी आफ्टर इतनी सारी मशक्कत करने के बाद ये आ रही है। इज इट क्लियर, हमारी वेलोसिटी आ गई। हमें अब यहाँ पे आता है सेकंड पार्ट जो कि दिमाग में हमारे घुस ही नहीं रहा है। What is the potential difference through which the electron must be accelerated to acquire this speed? कितने potential difference, मतलब वो potential difference क्या होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें ताकि इतनी स्पीड आए। तो इसके लिए ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमने कैपिटल V को वेलोसिटी माना तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD लिखेंगे। ठीक है, तो इफ अगर PD आपकी रिक्वायर्ड है टू गिव स्पीड V टू द इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हम मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मतलब नया कॉन्सेप्ट आएगा। नया क्या मतलब, एक कॉन्सेप्ट जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। अभी हमने देखा था लास्ट के क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी वाला, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे वी जो है ये स्पीड है, और वहाँ पे जो कैपिटल वी है वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये समझना इस चीज़ को। ऊपर मैंने सारा कैपिटल वी यूज़ किया है वेलोसिटी के लिए, मुझे स्मॉल करना चाहिए था बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जो सीन है आप ये समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये वी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे जो आपका स्मॉल वी है ये वेलोसिटी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको और आगे इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं। इसके और आगे लिख सकते हैं कि जो हमारा वी होगा यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस विल बी, देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो ना ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको दिमाग में हमेशा बैठाए रहना, कभी भी एक्सेलरेशन की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करना हो आपको वेलोसिटी को, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करके रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो है ये एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला एनर्जी है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसके बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। इज इट क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और उस तरीके से हम रिलेट करके स्पीड से पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट कर देते हैं। ठीक, तो अभी तक अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जाना था तो इस क्वेश्चन के बाद आप लोग इस चीज़ को जान लोगे, और कई सारे क्वेश्चन में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा कैपिटल वी, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल वी का स्क्वायर, अपॉन में वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो नीचे आ गया तो अपॉन में ई, और ऑब्वियसली ठीक है ये हमारा जो लास्ट में ई बचा, और एक हमारा जो हाफ का 2 था वो भी आ जाएगा, तो या तो हाफ बाहर लिखें या तो 2 लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, वो आपका वोल्ट में आएगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, तो कई सारी वैल्यूज को रखते हुए यानी कि मास की वैल्यू हमें पता है क्या रखेंगे, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक, और वी स्क्वायर को क्या रखेंगे, अभी हमने वेलोसिटी को निकाला 7 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो कि है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 2 से मल्टीप्लाई होगा वो। ओके, तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं इस चीज़ को। अभी जो आपका वी आएगा इसका जो हमारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये आएगा 13.9, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट इंटू
10 to the power 3 वोल्ट, या फिर इसको आप अप्रोक्सीमेटली 14 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, 14 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक यही ट्विस्ट था कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना था। तो अब आपको पता है, ओके। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ये लिखा हो कि पोटेंशियल डिफरेंस से जो भी रिलेट करना, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। The question we are about to solve is the CBSE sample paper question which came in 1998। ये आज से 20-21 साल पहले का क्वेश्चन है। तो हम इसको आज सॉल्व करने वाले हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाता, और इसमें कई सारे यूनिट कन्वर्जन है। तो ये क्वेश्चन आपके क्लास के किसी बच्चे ने भी मुझसे पूछा था। सो आई होप कि ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? अब मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन बीम जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन को एक ही एनर्जी देके ट्रांसफर करेगा आगे, ठीक है, दैट इज नोन एज मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम। इनिशियल एनर्जी 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी। अब ऑब्वियसली आप जानते हो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में चेंज करेंगे फर्दर सॉल्व करने के लिए। मूविंग हॉरिजॉन्टली, जो कि मूव हॉरिजॉन्टली करे, इज सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट हुई ऑफ 0.4 जी। जी मींस गॉस, ठीक है। तो जो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ठीक है, समझिए। तो 0.4 गॉस विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो गॉस को टेस्ला में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी तुम लोग को आ गया। नॉर्मल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, उसकी इनिशियल डायरेक्शन के नॉर्मल, यानी कि क्या हुआ कि आपकी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन था वो घूमा, और अल्टीमेटली क्या हो गया, इनिशियल टू द, मतलब कह रहे हैं ना यहाँ पे, सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 गॉस, या फिर 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, नॉर्मल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी थी, वो नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक, आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। अगर सिंपल डिफ्लेक्शन बोलता, यानी कि आपको एंगल निकालना था, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां लग गया डिफ्लेक्शन में, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर दिया गया। वर्टिकल डिफ्लेक्शन मींस वर्टिकली कितना डिस्टेंस नीचे चला गया ये, या फिर कितना ऊपर चला गया। तो नीचे या ऊपर उसके तो हम बाद में बात करेंगे। ऑफ द बीम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन 30 सेंटीमीटर आगे जा चुका है, तब उसके इनिशियल पोजीशन से वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना आया है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो अभी मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाऊंगा तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी के लिए ये समझो, मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन के अंडर में जब मैग्नेटिक फील्ड उसके पे लग रहा था, उसके लगने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने सर्कुलर पाथ ले लिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो किसके बराबर होगा? अभी तक जो हम करते हैं सिंपल मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि mv² विल बी इक्वल टू qvb, वेयर q इज द इलेक्ट्रॉन, तो हम e रख देंगे। तो वहां से हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, रेडियस हम निकाल लेंगे वहां से बेटा। रेडियस हमारा जब कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको रेडियस तो पता नहीं है ना, वहां से हमें रेडियस का अंदाजा लग जाएगा, और रेडियस का अंदाजा लग जाएगा उससे भी और भी चीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक, रेडियस हमारी जो आ जाएगी, इतना चीज करने के बाद, जो हमारे मतलब सारी वैल्यूज को रखने के बाद हमारी रेडियस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको वेलोसिटी का आइडिया नहीं है ना, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का आइडिया हमें नहीं है, तो वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी? देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम लोग पे छोड़ूंगा। वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी? हमको काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी का स्क्वायर से। यहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे, वो आप निकालोगे, ठीक। और रेडियस कहाँ से निकलेगा? बोलो जल्दी। मास इंटू वेलोसिटी स्मॉल v अपॉन q इंटू b, यहाँ से आपका रेडियस निकलेगा, ठीक।
देखो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में करी हुई है ना, तो उसको बार बार करने से तो मतलब नहीं है। आपकी प्रैक्टिस भी होगी अगर आप खुद से करते हो तो इसको आप करो। उसके बाद हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, हमें रेडियस मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। हमें रेडियस पता चल गया, हमें वेलोसिटी पता चल गई। ओके, अब हम करते हैं कहानी को स्टार्ट। इस क्वेश्चन में ये जो पूछा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। सपोज ये सर्कुलर पाथ ले रहा था इलेक्ट्रॉन। ठीक, सपोज करो ये सर्कुलर पाथ ले रहा था इलेक्ट्रॉन और इसका सेंटर बना लेते हैं हम। सेंटर सपोज यहाँ पे है, इसका सेंटर ओ ले लेते हैं। ठीक है, और आपका जो सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इधर से घुसा था, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, इसको मैं बनाता हूँ। इलेक्ट्रॉन हमारा इनिशियली इधर से घुसा, ठीक इधर से घुसा और इस तरह से घूमने लगा क्लॉकवाइज। ओके, तो ये इनिशियल पॉइंट आप पी मान लो फॉर एग्जांपल, इसको मैं मान लेता हूँ पी। ओके, और कितना डिफ्लेक्ट हुआ 30 सेंटीमीटर चल लेने के बाद, 30 सेंटीमीटर गोल चलने के बाद, 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ चला गया। कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। 30 सेंटीमीटर यहाँ मान लो कहीं चला होगा, यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इससे मतलब 30 सेंटीमीटर चला और यहाँ पे पहुंचा। ये हमारा पॉइंट, हम इसको क्यू मान ले रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम क्यू मान ले रहे हैं। इज इट क्लियर? सो ये हमारा क्यू हो गया पॉइंट, और रेडियस से हम जोड़े हुए हैं, इसको देख ही सकते हो आप। और ये जो हमारी डिस्टेंस है, जो आर्क है ना, ये जो आर्क बनी हुई है यहाँ पे, मैं डिस्टेंस यहाँ से इस तरह से दिखा रहा हूँ। मैं आर्क की डिस्टेंस बता रहा हूँ, तो पी से क्यू ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, कितना चल लिया, ये गोल सा चला, ऐसे चला। ठीक है, गोल से ऐसे चला, ये ऐसे, ये 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये हमारा है 30 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, 30 सेंटीमीटर सर्कुलर पाथ में चला और हमको उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताना है। ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताना है यानी कि क्या बताना है, देखो ध्यान से देखना। इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते हैं, ये भी है रेडियस। ठीक, जो तुमको निकालना है वो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको यहाँ से यहाँ फॉर्म करो, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं, सीधा हो जाता कि हाँ। ये आपको जो डिस्टेंस निकालनी है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब आपको जो निकालना है, आपको ये लेंथ निकालनी है, ये वाली, समझ रहे हो? ये लेंथ निकालनी है। इलेक्ट्रॉन इनिशियली पी पे था, अब क्यू पे आ गया है 30 सेंटीमीटर चल के। आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताना है कितना हुआ उसका, यानी कि पी से क्यू पे। तो यानी कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब ये वाला डिफ्लेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछता तो आप ये वाली डिस्टेंस निकालते, बट क्योंकि हमसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है तो हम ये वाली डिस्टेंस निकालने वाले हैं। ठीक है, अब भाई हम यहाँ कहाँ से निकालेंगे ये वाली डिस्टेंस, दिमाग वहां पे लगता है। देखो इसको नेमिंग दे देते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओ नाम दे दिया सेंटर को, इसको हम पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसको हम पॉइंट ए नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है। हमें निकालना है ए पी या फिर पी ए, जो भी आपको नाम पसंद है, हमको पी ए या फिर ए पी निकालना है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कितने रेडियस के सर्कल में, तो ये जो रेडियस है हमारा, ये रेडियस क्या हो गया भाई, दिस रेडियस, ये हमारा रेडियस जो है, ये जो अभी हमने कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो जो कैलकुलेटेड है मैं वो लिख दे रहा हूँ। ये जो रेडियस कैलकुलेट करके अभी तुम निकालोगे ना, वो इतना आएगा, इतना मीटर। ठीक है, कितना मीटर आ रहा है, 11.32 मीटर आएगा कैलकुलेट करने के बाद। 11.3 भी लिखोगे तो चलेगा, अप्रोक्सीमेट लेते हैं। इतने मीटर का क्या है आपका रेडियस है, इतने मीटर का इसका रेडियस है, यानी कि बहुत बड़ा रेडियस है, बहुत बड़ा रेडियस है। 11.2 मीटर में बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा रेडियस है ये, जिस जिसका कि सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 11.2 मीटर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है जब वो 30 सेंटीमीटर चला तब हमको बताइए उसका क्या वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा। तो ऑब्वियसली 11.2 11.32 मतलब 11.32 मीटर के आगे ये 30 सेंटीमीटर तो बहुत ही छोटा हो गया ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
एक तो 1100 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो 1100 सेंटीमीटर के आगे 30 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको एक तरीके का ट्रायंगल टाइप से मान सकते हैं क्या? हम इसको ट्रायंगल मान सकते हैं ना, बिल्कुल एक ट्रायंगल मान लो इसको। ठीक है, तो ये जो हमारा ओपी डिस्टेंस है, अगर हम इसकी बात करें, तो हमारी ओपी डिस्टेंस है यहाँ पे, ये किसके बराबर है? ये ओ ए, हमारी ओ ए प्लस ए पी के बराबर है ना, जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। ठीक, इतनी चीज़ें दिमाग में घुसा लो। तो हम और क्या लिख सकते हैं, हमको निकालना क्या है, ए पी निकालना है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये जो ए पी है ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ पी माइनस ओ ए के, ओ पी माइनस ओ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आती है हम बात थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें। सपोज करो कि ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। कौन सा एंगल, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला जो एंगल हमारा बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो एंगल बन रहा है, सपोज कर लो कि ये थीटा एंगल है। ठीक है, सपोज कर लो कि ये कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक, सपोज करो ये थीटा एंगल है। अब हम कौन से ट्रायंगल को कंसीडर करने वाले हैं? हम ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे अभी, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आपको पता है। ठीक है, रेडियन में आता है हमारा आंसर, उसका एंगल जो भी है। तो जो हमारा एंगल होता है इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, हमारा जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है। तो हमारा जो थीटा, दिस थीटा विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमें आर्क का आइडिया है, सर्कुलर पाथ में कितना चला इलेक्ट्रॉन, 30 सेंटीमीटर। तो हमारा आर्क जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अब क्या हम सेंटीमीटर में रखेंगे? नहीं, हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा उसको। तो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर इज आवर आर्क। और हमारा जो रेडियस निकल के आया है वो क्या है, 11.32 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एंगल आएगा, थीटा आएगा, वो क्या आ जाएगा, वो रेडियन में आ जाएगा। ठीक, वो क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। हमारा रेडियन में आएगा वो 0.026 समथिंग, उतना रेडियन में आएगा। अब इस रेडियन को आप किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में। तो रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, जब हमको रेडियन को कन्वर्ट करना होता है, तो हमको रेडियन को कन्वर्ट करना होता है डिग्री में, तो हम क्या करते हैं, हम उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अगर डिग्री को रेडियन में करना होता है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए? तो इसको हम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई में, तो 0.026 मल्टीप्लाई बाय, आई नो ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था उस समय 1998 में। 5 नंबर नहीं, 6 नंबर में। उस समय पैटर्न अलग था। ठीक है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये, और होप सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग उसको करने के लायक हो गए, जब एक बार इसको करे होगे तो। ठीक है, तो वहाँ से हमारा ये जो, इसको क्या करेंगे हम, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो एंगल आएगा डिग्रीज में, दैट विल बी इज इक्वल टू 1.52 डिग्री। ठीक है, 1.52 डिग्री के बराबर आ जाएगा हमारा एंगल। ठीक, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए क्यू। ठीक, तो ट्रायंगल ओ ए क्यू, तो हम क्या मानते हैं ना, पता है, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि 11.32 मीटर में ये जो आपका, अगर हम बात करें, ये जो 30 सेंटीमीटर है, बहुत ही छोटी मतलब एक साइज है। तो ये जो हमारा ए क्यू होगा वो लगभग लगभग हम पी क्यू के बराबर मान लेते हैं। जो हमारा ए क्यू है उसको हम लगभग लगभग इसके बराबर मान ले रहे हैं, पी क्यू के बराबर मान ले रहे हैं। तो और ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। इस ट्रायंगल में लगा दो आप कॉस थीटा। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा लगा दो। क्यों कॉस थीटा लगाया अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। अगर आप कॉस थीटा लगाओगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका हो जाएगा ए ओ। ठीक है, ए हो जाएगा बेस आपका, और आपका ये जो ओ क्यू हो जाएगा,
दिस विल बी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे आप cos थीटा लगा दो, तो कौन सा ट्रायंगल में हमको लगाना है इन, और ये जो थीटा आया है ये 1.52 डिग्री आया है, याद रखना, ठीक है। या तो क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा cos 1.5 डिग्री कितना होगा या cos sin 1.5 डिग्री कितना होगा, या तो तुम डायरेक्ट ऐसे रख देना सिंपल, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, हम क्या लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होगा भाई, ये होगा हमारा ओ ए अपॉन ओ क्यू को हम लिख सकते हैं आर, रेडियस, इसको और इम्प्रोवाइज करते हैं तो हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो एपी निकालना है, तो आओ देखते हैं एपी कैसे लिखेंगे हम। अब हम ऊपर जाते हैं वापस से अपने जो हमको निकालना है, दिस एपी विल बी इक्वल टू ओपी माइनस ओ ए। ओपी क्या है रेडियस, तो लिख देंगे आर, माइनस ओ ए क्या है आपका, ये जो ओ ए है वो क्या है, अभी आपने निकाला किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में, कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब कॉस 1.52 डिग्री, कॉस 1.52, कॉस 1.52 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.99। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। मुझे मतलब ये वैल्यू पता है क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कई बार सॉल्व किया है, ठीक है। जब मैं पढ़ रहा था तब भी ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, और इस वाले क्वेश्चन को जब कोई पूछा तो फिर मैंने इसको देखा। वैसे तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप डायरेक्ट कॉस थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा, बट क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप लिख सकते हो एपी विल बी इक्वल टू, आर क्या है 11.32 मीटर, माइनस अगेन 11.32 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय कॉस 1.52 डिग्री होता है 0.99, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एपी विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग हमारा जो आएगा वो आएगा 4 मिलीमीटर आफ्टर कैलकुलेशन, हमारा ये आएगा 4 मिलीमीटर। वैसे तो आता है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर आता है, ठीक है, माइनस 3 मीटर आंसर आता है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 4 mm, मतलब 4 क्या 3.99 समथिंग आता है, तो उसको हम 4 mm मान लेते हैं। सो देखो ये बाकी फिजिक्स तो यहीं पे ख़त्म हो गई थी हमारी, जब हमने रेडियस निकाल लिया, जब हमने वेलोसिटी निकाल ली, उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बची थी। और मैथमेटिक्स में भी हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, जो कि क्लास 10th में ऑलरेडी तुम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वाले को नहीं समझ में आएगा, या फिर कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10th तो सबने पढ़ी है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से लगाओ, हमने तो बता दिया लेकिन आप खुद से भी लगाओ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है उस समय का, सिर्फ और सिर्फ अगर ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2001 में आया था क्वेश्चन, जब मतलब बहुत पहले, मेरे बोर्ड देने से बहुत पहले, तो उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे ही सॉल्व कर पाए थे। तो एक रूल आ गया था कि इस वाला क्वेश्चन जो भी मतलब थोड़ा सा भी किसी ने किया है तो उसको नंबर मिल रहा था। तो आई होप इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हो। और पता है अगर इतना भी नहीं दिमाग चल रहा था ना, कुछ लोग अगर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी निकाल के छोड़ दिए थे, उसको भी नंबर मिला था, पूरा नहीं मिला था बट कुछ नंबर मिले थे। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को पूरा मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ वैल्यूज को निकाल के ही छोड़ना, क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आईआईटी में आया हुआ था, जब आईआईटी अलग होता था, ठीक है। आईआईटी और एआई ट्रिपल ई दो अलग एग्जाम्स होते थे, अब तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस होता है, बट पहले आईआईटी अलग होता था और एआई ट्रिपल ई अलग होता था। सो a beam of proton enters a uniform magnetic field of 0.3 टेस्ला, एक बीम ऑफ प्रोटॉन्स, बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंटर कर रहा है इतने मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी वेलोसिटी है उसकी 4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड,
कितने एंगल से कर रहा है, 60 डिग्री से कर रहा है। अब आप लोग जानते हो ना कि जब किसी एंगल से करता है तो वो हेलिकल पाथ लेता है, ठीक है, वो हेलिकल पाथ बना लेता है कोई भी चार्ज पार्टिकल। तो आपको उस हेलिकल पाथ का रेडियस निकालना है, यानी कि ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ का वो रेडियस हेलिकल पाथ का एक ही बात है, वो निकालना है। और आपको निकालना है पिच ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स यानी कि जो हेलिकल पाथ बन रहा है उसका पिच, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हुए कितना आगे चला, तो पिच की लेंथ बतानी है आपको और ये निकाल। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें निकालना क्या क्या है ये तो हमें पता ही है, हम निकाल लेते हैं क्या क्या। पहले चीज़ हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी के। बेसिकली हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालेंगे, जो कि याद है ना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन रहे थे, एक v cos थीटा एक v sin थीटा, एक पैरेलल था एक परपेंडिकुलर था। तो cos वाला कंपोनेंट जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट था और sin वाला कंपोनेंट हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, तो हम दोनों कंपोनेंट को निकाल लेंगे। तो v पैरेलल निकालेंगे, तो v पैरेलल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, v cos थीटा। v जो हमारा वेलोसिटी है v स्मॉल v का हम पैरेलल निकालेंगे तो vp लिख रहे हैं इसको, ठीक है। v पैरेलल कंपोनेंट को vp लिख रहा हूँ और परपेंडिकुलर को vpr लिखूंगा। तो तुम लोग समझ जाना कि पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या है। तो ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री, राइट। यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर क्या था 4 इंटू 10 टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, cos 60 से। cos 60 होता है 1/2, 0 1 साइन होता है ना 0 1/2, तो हाँ cos 60 1/2 होता है। तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे अपना v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर हम क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा v साइन थीटा। थीटा इज 60 डिग्री, सो वी कैन राइट 60 डिग्री। साइन थीटा और 60, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू √3/2, √3, ठीक है। √3 को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 2 में रूट नहीं होता, √3/2, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 3.4, 3.5 लिख लो, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चों? ना, अब आप जानते हो ना, जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाने देता है, सीधा सीधा बिल्कुल। बट जो हमारा v परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है वो सर्कुलर पाथ देता है इलेक्ट्रॉन को, या फिर कोई भी प्रोटॉन यहाँ पे आया तो प्रोटॉन को, कोई भी चार्ज पार्टिकल को। तो जो पाथ होता है हमारा वो हेलिकल बन जाता है। तो अगर हम रेडियस की बात करें, हेलिकल के रेडियस की बात करें, तो रेडियस हम कैसे निकालते थे याद करो। रेडियस हम निकालते थे, जो हमारा रेडियस सिंपल फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला जो रेडियस का था वो क्या था हमारा, क्यू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, आई थिंक, राइट है ना, एम वी अपॉन क्यू बी, यही था ना बेटा। भाई जो हमारा रेडियस का फॉर्मूला आता था वो तो यही आता था, तो हमें रेडियस ऑफ द हेलिक्स निकालना है, एम वी अपॉन क्यू बी। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी हम यूज करने वाले हैं, अब वहां पे बात आती है कि क्या हम कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का यूज करें। क्या हम वेलोसिटी पूरी जो दी हुई है क्या वही यूज कर लें, 4 इंटू 10 टू द 5 मीटर पर सेकेंड, क्या वही यूज करेंगे? नहीं। जब यहाँ पे पिच के रेडियस की बात, जब वहाँ पे आपके हेलिकल पाथ के रेडियस की बात आती है, तो आपको कौन सी वेलोसिटी लोगे, जिस जो रिस्पॉन्सिबल है उसके सर्कुलर पाथ देने में। यानी कि कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है उसको सर्कुलर पाथ देने में, परपेंडिकुलर वाली ना। तो हम परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v PERP, mv अपॉन mv इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन q और b, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल वेलोसिटी लिख के चले जाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। बट चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे जो हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमने अगर कई सारी प्रैक्टिस करी हुई है तो हमारे लिए क्वेश्चन कुछ रह नहीं जाता। तो इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो रेडियस निकल के आता है वो आता है
हमारा 0.012 मीटर। ओके, हमारा आता है 0.012 मीटर टू मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.012 मीटर। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमारा रेडियस निकल के आ गया बेटा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब हमको पिच निकालना है। तो हमको पिच निकालने के लिए हमको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी चाहिए होगा। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहाँ से निकल के आता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहाँ से निकल के आता है? उसको निकालने के लिए हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है? टू होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होगा होगा कि नहीं होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो ऑब्वियसली एक सर्कुलर पाथ ले रहा है ना, तो उस सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर जो होगा वो तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पाई और आर अपॉन में वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेंगे? सर्कुलर पाथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कौन सी? वी परपेंडिकुलर, वी पी आर पी, है ना। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कुछ आएगा 221.75। आप लोग जरूर कैलकुलेट करना, आप लोग डायरेक्ट मत लिखना अपने कॉपी में, मुझे कैलकुलेशन दिखना चाहिए कि आपने किया है। रफ में अपने कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है, और पॉज कर करके वीडियो को नोट करते रहना। ओके, 10 टू द पावर। कोशिश किया करो कि जब क्लास का टाइम लगा करे उसी टाइम पे वीडियो देख के मुझे तुरंत का तुरंत भेज दोगे तो आपका सारी चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आपको पता ही है ना, अभी पीटीपी पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुई थी जब, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। तो अपना रिकॉर्ड अच्छा रखो। रिकॉर्ड अच्छा नहीं रखोगे ना तो बाद में दिक्कत होगी, और किस चीज़ में दिक्कत होगी वो बताएंगे बाद में ही। ठीक है, बट इतना समझ लो कि दिक्कत होगी। जो समझदार है वो समझ जाओ और अपनी चीज़ों को मेंटेन करो। एक एक चीज़, जो भी चीज़ कहा जाता है उसको टाइमली करके दे दो। समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझा वो ना ही समझे। उसके बाद है पिच की हम बात करेंगे। पिच हमें निकालना है, तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है? पिच का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, ऑब्वियसली देखो पिच क्या होता है? आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ। पिच क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है ना, कि वो आखिर आगे गया तो कितना गया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब गोल गोल घूमते घूमते वो आगे गया तो कितना गया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। ठीक है, यानी कि जैसे आप, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक को जब मैंने समझाया था तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। और तो ये चीज़ कैसे आगे गई है, वीडियो भी मैंने इसमें बनाई है। ओके, सो ये कितना पिच हमारा। अब पिच के लिए हम कौन सी वेलोसिटी कंपोनेंट को यूज करेंगे? पिच आखिर किस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? पिच किसकी वजह से आएगी? ऑब्वियसली वो आगे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, या सॉरी प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोटॉन आगे जा रहा है उसकी वजह से बात हो रही है ना यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इसी वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है तो वो भी पैरेलल लेते हैं, तो वी पी लेते हैं। ठीक है, वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। हमने अभी टाइम पीरियड निकाला है कि नहीं निकाला? बस हमारा टाइम पीरियड जो आ गया उसको हम वी पैरेलल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी पैरेलल कंपोनेंट हमने क्या निकाला था? 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड अभी हमने निकाला 21.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स, 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.0435 मीटर। ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी पिच की लेंथ आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हम मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, देखो वैसे तो साइक्लोट्रॉन होना चाहिए था बट वो हमारे कोर्स से हट चुका है। तो अब जो हमारा होगा वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो मैं बनाऊंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, जो कि हमारा पार्ट 4 होगा न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो उससे मैं बना दूंगा। तो तुम लोग क्या करना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के और चैप्टर 4 के सारे न्यूमेरिकल्स और जो भी नोट्स हैं उसको प्रिपेयर करके अपनी कॉपी को बना लो। ठीक है, इतना काम कर लेना बेटा।